Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. So, as we have discussed in the previous videos about passive active, or you can say voicing, or you can say passivizations. So, we have seen different kinds of strategies, techniques to change passive sentences from active, or you can say active into passive sentences. So, what happens? There is one important point to discuss today in this video. The people understood in passivization, it means when we change active into passive, meaning changed. No. It means meaning is remain constant but change only structure of sentences. We change the position of subject and objects, and also we change the structure of verb forms. It means active verb into passive verb. And we know very well in active verb, we do not have any kind of auxiliary be form, and we do not use by as expression to indicate the subject as object in passive sentence. We know very well we change only structure of the sentences but meaning is same, or you can say meaning is constant. इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है यूज ऑफ टेंसेस. In the previous video I discussed about tenses. If you are interested, you can go to the last video and watch the tenses. Like I have discussed about simple indefinite, or you can say that is a simple present tense, or you can say that is present indefinite, or you can say that is simple past, you can say that is a past participle. And we have discussed light kyun se ho gayi ekdam? Huh? So we have discussed about the tenses, like that is present indefinite, or you can say simple present, that is present progressive and present perfect, and we discussed simple future, future indefinite. We discussed past indefinite or simple past. We have discussed past progressive, past perfect, and also discussed we have four kinds of subtenses जिनका पेसिव नहीं बनता है. इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ टेंसेस, कि वो कौन से टेंसेस हैं जो मीनिंग की तरह एक्टिव इनटू पैसिव में चेंज नहीं होते. जस्ट वी डिस्कस्ड मीनिंग डिड नॉट चेंज इन पैसिवाइजेशन. इट मींस कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती है, ओनली चेंज स्ट्रक्चर. इसी तरीके से ऐसे वो कौन से दो टेंसेस हैं कि जब हम एक्टिव इनटू पैसिव चेंज करते हैं टेंस इज सेम, टेंस इज कांस्टेंट, टेंस चेंज नहीं होता है. हालांकि सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एक्टिव इनटू पैसिव, लेकिन टेंस सेम रहता है. जैसे कौन से टेंसेस है वो? इट मींस व्हेन वी डिस्कस अबाउट passive tenses as normally just the same as into the active tenses. So वो कौन सा टेंस है? इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव. यू नो एक ऐसा टेंस है जिसे कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और यू कैन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, or you can say present imperfect. You know very well in active tense what happens when we are using present progressive tense. So is or am plus main verb ing. कभी भी जब यूज करते हैं, सपोज दैट इज आई एम राइटिंग a letter. So I am writing a letter, you can say it is active sentence because of active verb. तो ये क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, या यू कैन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है. कैसे वी कैन आइडेंटिफाई? क्योंकि इसमें एक हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जिसे कहते हैं ऑक्सिलरी बी वर्ब, एंड जो मेन वर्ब होता है उसमें होती है आईएनजी. तो राइट इज अ मेन वर्ब, एंड इन दिस वर्ब आई यूज्ड आईएनजी, दैट बिकम्स राइटिंग. दैट इज द की आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इसी तरीके से इज प्लस मेन वर्ब आईएनजी, इसी तरीके से दैट इज आर प्लस मेन वर्ब आईएनजी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, ये जो टेंस है दैट इज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इट विल रिमेन कांस्टेंट इन पैसिव पैसिवाइजेशन. पैसिव में इट मींस व्हाट हैपेंस वेरी इजी, इसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं. यू कैन से आ लेटर इज सिंगुलर इज बीइंग written by I becomes me. तो a letter is being written by me. अगर इसका टेंस देखा जाए, टेंस ऑफ द पैसिव सेंटेंस, ये एक्टिव है, ये पैसिव है.
तो यू कैन सी इसका भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है और इसका भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, बिकॉज इज यहाँ पे देखो यूज किया गया है और बी में आईएनजी ऐड किया हो गया, बीइंग, दैट इज अ की आइडेंटिफिकेशन। जैसे एक्टिव में था हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी, उसी तरीके से पैसिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब, देखिए बीइंग हो गया। तो यही बता रहे हैं कि इट मींस व्हेन वी आर यूजिंग पैसिव, इट मींस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इन पैसिव, is it similar in the present progressive in active? That is the number one, means कि अगर हम present progressive या present imperfect, present continuous tense, active tense sentence में यूज कर रहे हैं तो same tense होगा present passive में, it means same tense जो होगा वो passive sentence में होगा। How you can see here, it means number one is the papers are being prepared now by the secretary। सो जो पहला सेंटेंस है वो क्या, पैसिव सेंटेंस है। द पेपर्स आर बीइंग, यू कैन से आर इज हियर, वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी बी वर्ब टू इंडिकेट द प्रेजेंट टेंस। और देखिए बी बिकम्स बीइंग, अब इसमें आईएनजी यूज किया है तो आर बीइंग एंड प्रिपेयर्ड, यू कैन सी बिकम द पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज वी एडेड ईडी टू द वर्ब, इट इज प्रिपेयर। ओके, हो गया प्रिपेयर्ड, यस प्रिपेयर्ड। सो अब इसमें देख सकते हैं इट इज अ पैसिव सेंटेंस, लेकिन इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, क्योंकि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया, उसके बाद हमने आईएनजी यूज किया इन बी। इसी तरीके से एक्टिव देखिए, नेक्स्ट इज एक्टिव सेंटेंस दैट द सेक्रेटरी इज प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। अब देखिए फिर वही स्ट्रक्चर आ रहा है, इट मींस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव टेंस व्हाट हैपेंस, कह रहे उसके पास एक हेल्पिंग वर्ब हो और उसके आगे जो वर्ब आए उसमें आईएनजी ऐड हो। देखिए इसमें, अब इसमें जो प्रिपेयर जो टेंस था, प्रिपेयर हो गया प्रिपेयरिंग और उसमें था प्रिपेयर्ड ईडी। सो देखिए एक्टिव सेंटेंस में भी टेंस सेम है, अगेन इट इज अ प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरीके से आप दैट इज पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें, दैट इज द सेम, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मींस यूज वाज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर होगा, लेकिन टेंस फिर सेम रहेगा। इसका मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस जो है, जो पैसिव और एक्टिव दोनों सेंटेंस में सेम रहेगा, ओनली चेंज स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव का बनता नहीं है, दैट इज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। इसी तरीके से दूसरा एक और टेंस है, यू नो प्रेजेंट परफेक्ट। यस, प्रेजेंट परफेक्ट मींस वी आर यूजिंग हैज हैव प्लस पीपी, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, टेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट मींस वेरी इजी स्ट्रक्चर, इट इज इन एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, यूज हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव सेंटेंस में यूज करेंगे, जब उसको एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो टेंस सेम रहेगा, नो चेंज इन टेंस, ओनली चेंज स्ट्रक्चर। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, एलेक्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब ये क्या पैसिव सेंटेंस है, देखिए, ठीक है। पैसिव में क्या, यू कैन से वेरी वेल वी आर यूजिंग हैज। मैंने बताया कि परफेक्ट टेंस में क्या हैज या हैव यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, ओके। सो एलेक्स हैज बीन अरेस्टेड, और ये भी बताया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप अरेस्टेड में देखा, अरेस्ट इज द फर्स्ट फॉर्म, अरेस्टेड इज सेकंड फॉर्म एज वेल एज थर्ड फॉर्म। तो अरेस्ट में ईडी ऐड कर दे, इट बिकम्स अरेस्टेड, इसे कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यू कैन से पीपी मींस पास्ट पार्टिसिपल। ये रूल है, यस आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो इसका टेंस क्या है पैसिव सेंटेंस का, एलेक्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो टेंस क्या है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरीके से इसका एक्टिव देखते हैं, एक्टिव क्या है, द पुलिस हैव अरेस्टेड एलेक्स। अब हैव यूज किया है बिकॉज द पुलिस यूज इन प्लूरल फॉर्म, मैंने डिस्कस किया है इन सिंगुलर प्लूरल वीडियो में। द पुलिस, जो पुलिस वर्ड है, इट इज यूज्ड इन द प्लूरल केस। अब देखिए हैव यूज हो गया, सेम कह रहा है कि मेन वर्ब यहाँ पे इसके ईडी ऐड किया गया है, अरेस्ट, यहाँ भी अरेस्टेड है, यह भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप देख सकते हैं कंपेयर टू द पैसिव एक्टिव सेंटेंस, यहाँ पे हैज है बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे अरेस्टेड यूज किया है। अब पुलिस क्या है, इट इज द थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए यहाँ पे यूज किया हैव, और इसके साथ मेन वर्ब जो अरेस्ट है उसमें भी ईडी है। तो देख सकते हैं दोनों का टेंस सेम है, देयर इज नो चेंज इन द टेंस। यस,
यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है और पैसिव का भी प्रेजेंट परफेक्ट है और एक्टिव का भी प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरीके से आप जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे उसमें भी टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज पास्ट परफेक्ट हैड प्लस पीपी। उसी तरीके से जब पैसिव में आएगा तो हैड बीन प्लस पीपी हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वहां भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, अ बुक हैज बीन रिटन बाय देम। अब देखिए हैज अगेन इट कम्स बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ बुक। अब हैज बीन और रिटन देखिए यहाँ पे राइट बिकम्स रिटन, इट इज द थर्ड फॉर्म, यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल बाय देम। अब ये तो पैसिव है, पैसिव का टेंस का यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। अब एक्टिव का देखते हैं, एक्टिव में भी दे हैव रिटन अ बुक। आप फिर देख सकते हैं दे जो है थर्ड पर्सन, दैट इज सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसी प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, अभी मैंने बताया आपको। और देखिए मेन वर्ब का रिटन है जिसमें en ऐड किया गया, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब और कैसे थर्ड फॉर्म। तो यहां हम कंपेयर कर सकते हैं कि पैसिवाइजेशन में इट मींस जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है एक्टिव सेंटेंस का तो पैसिव में वो चेंज हो जाएगा, yes it becomes past tense in passive because of the main verb की थर्ड फॉर्म, ओके। बट हमारे पास कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो सेम रहते हैं, पैसिव और एक्टिव में चेंज नहीं होते हैं, जिनमें प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव। अगर एक्टिव टेंस में सॉरी एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है या पास्ट प्रोग्रेसिव है तो वो पैसिव में चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस है, दो टेंस ऐसे हैं अगर ये एक्टिव सेंटेंस में हो, जैसे हैज और हैव प्लस पीपी एंड हैड प्लस पीपी, तो पैसिव सेंटेंस में भी टेंस सेम रहेगा एज आई डिस्कस्ड हियर। बाकी सारे टेंसेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यस, फोर टेंसेस वी डू नॉट हैव यूज इन द पैसिवाइजेशन डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल यूज ऑफ टेंसेस। सो ये सब कुछ टेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते हैं। Okay, friends, so after a discussion about to use the tenses in the passivizations, now I would like to discuss about verbs not used in the passive. अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से verbs हैं जो passive में यूज नहीं होते। It means just we discussed use of tenses कि ऐसे कौन से tenses हैं जो एक्टिव इनटू पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, टेंसेस सेम रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्ब्स नॉट यूज्ड इन द पैसिव, ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो पैसिव में यूज नहीं होते, इट मींस कि उनका पैसिव सेंटेंस नहीं बन सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द एक्टिव, इट मींस कि ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं लेकिन पैसिव में यूज नहीं होते, उनका पैसिव नहीं बनेगा। सपोज इट मींस नॉट ऑल वर्ब्स कैन हैव पैसिव फॉर्म्स, इट इज ट्रू कि सारे वर्ब्स की पैसिव फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो इट मींस verbs those who have not passive forms in the passive structures, or you can say it is impossible to change from active into passive, ऐसे verbs कहलाते हैं intransitive verbs। intransitive verbs means कि इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे वर्ब्स जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होता है। इन मींस इंग्लिश में इन जो है आई एन इन जो प्रीफिक्स है इट एडिड टू द रूट वर्ड, जिससे ट्रांसिटिव से बना इंट्रांसिटिव, डिफरेंट से इनडिफरेंट, टॉलरेट इनटॉलरेंट। सो व्हाट हैपेंस, इन का मतलब होता है नो, इंग्लिश में इन प्रीफिक्स जो है उसका मीन्स होता है नो, मीन्स नहीं। सो इट मींस इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। सो ऐसे कौन से वर्ब्स हैं, कैन से गो, गो, स्लीप, डाई, अराइव, वॉक, सिट एक्सेट्रा, जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते फिर भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट रहता है, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। और इंट्रांसिटिव वर्ब्स का कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, इफ यू चेंज इनटू पैसिव इट विल इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। सो कम द सेंटेंस इफ आई से आई गो टू माय होम,
आई गो टू माई होम। वी कैन से गो जो वर्ब यहाँ यूज किया गया है दैट इज द इंट्रांसिटिव वर्ब्स जिसका पैसिव फॉर्म अवेलेबल नहीं है। यू कांट से is gone, is went, was gone, was no. So it means if I say to my home is gone by me, that is passive. To my home is gone by me, that is not correct. ये passive नहीं है क्योंकि go की जो form है वो passive में available नहीं है. We can't use any auxiliary be form with gone. Yes, gone use होता है सिर्फ perfect tense में. That is present perfect and past perfect. You can say future perfect tense. That is active tense. Active sentence. And what is the tense? Perfect tense में gone. Yes, go, went, gone. But gone is not used in the passive forms because इसका passivization available नहीं है. इसी तरीके से sleeps है, he sleeps. अब देखिए स्लीप क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके पास सब्जेक्ट ही तो है लेकिन इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन्हीं वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, और पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम वी मस्ट हैव नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट होगा किसका? एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है, वी कांट से स्लेप्ट बाय हिम, नो, क्योंकि स्लेप्ट जो है दैट इज a verb. Sleep का बन गया slept, that is a main verb third form, but with the subject of it, with the subject of passive sentence, the subject नहीं, क्योंकि he जो है वो तो him बन गया object in passive, but with the subject in passive, और जो passive का subject होता है वो होता है active का object, तो active में हमारे पास object नहीं है, इसलिए passive के पास subject नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं कि passive नहीं बन सकता है स्लीप का। स्लीप इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसका पैसिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसी तरीके से हमारे पास है दे अराइव्ड हियर। अब देखिए अराइव्ड जो है अगेन इट इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब और दे इसका सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा पैसिव सेंटेंस में, लेकिन फिर पैसिव का सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। इफ आई से हियर इज अराइव्ड बाय देम, हियर इज अराइव्ड बाय देम, क्योंकि हियर जो है एडवर्ब है, इट इज नॉट अ नाउन और प्रोनाउन, इसलिए सब्जेक्ट की पोजीशन नहीं ले सकता, इट कांट फंक्शन लाइक अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का फंक्शन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, या नाउन हो या प्रोनाउन है। इफ आई से हियर इज अराइव्ड बाय देम, सो इज आई यूज हियर और हियर अराइव्ड बाय देम, तो दे जो है देम तो बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट तो बन गया पैसिव का, लेकिन पैसिव के पास सब्जेक्ट नहीं है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इनटू पैसिव। तो अराइव भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसका पैसिव फॉर्म अवेलेबल नहीं है, जिसका पैसिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स भी होते हैं। ट्रांसिटिव मींस अ वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में जिनके पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है। ट्रांसिटिव मींस वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट। That is you can say active verbs or you can say action. So जैसे eat है, eat, drink, write, listen, speak, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जिनके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आपने इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इफ आई से आई राइट अ लेटर, तो आ लेटर क्या ऑब्जेक्ट है और राइट क्या ट्रांसिटिव वर्ब, बिकॉज राइट के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इफ आई से आई राइट, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड यू राइट, क्वेश्चन हो सकता है व्हाट यू राइट, व्हाट डिड यू राइट, बट इफ आई यूज द ऑब्जेक्ट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स के कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, बट नॉट ऑल, कि जो जिनके पास एक्टिव फॉर्म तो अवेलेबल होती है लेकिन उनके पास पैसिव फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, जस्ट लाइक इंट्रांसिटिव वर्ब्स। लेकिन और हमारे पास इनडेफिनिट नंबर ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जो पैसिव में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, जस्ट सिमिलर टू द इंट्रांसिटिव वर्ब्स। देखिए वो कौन से वर्ब्स कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, मतलब ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स जो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं उनको कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव का मतलब वो सिर्फ स्टेट को रेफर करते हैं, ओनली रेफर द स्टेट बट नॉट एक्शन। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स का मतलब ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ एक स्टेट को बताते हैं, एक पोजीशन लोकेशन को बताते हैं, लेकिन वो एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं। जैसे ईट का एक्शन वर्ब है, ड्रिंक का एक्शन वर्ब है, राइट का एक्शन वर्ब है, स्पीक एक्शन वर्ब है, लिसन एक्शन वर्ब है। तो ये एक्शन वर्ब का मतलब हो गया कि इनका पैसिव बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स जो सिर्फ स्टेट को बताते हैं बट नॉट एक्शन, वो उन वर्ब्स का हम
पैसिव नहीं बना सकते। वो कौन से वर्ब हैं? जैसे फिट है, हैव, लेक, रिजेंबल, देखिए सूट। सो अब देखिए ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें कहते हैं हम स्टेटिव वर्ब, जो सिर्फ स्टेट को रेफर करते हैं। अब अगर ये वर्ब आपको किसी एक्टिव सेंटेंस में मिले तब उसका पैसिव नहीं बन सकता। एग्जांपल है, दे हैव अ नाइस हाउस। अब देखिए हैव यहां पे क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव मींस अ वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो इसके पास ऑब्जेक्ट क्या है? अ नाइस हाउस। देखिए पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। अगर आपने इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बना दिया, अ नाइस हाउस इज हैड बाय देम, यस पैसिव आपने बनाया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पैसिवाइजेशन। जैसे रूल बताया था कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव का। तो यहां दोनों अवेलेबल है हमारे पास। दे सब्जेक्ट है, देखिए दे सब्जेक्ट है, अ नाइस हाउस ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पैसिवाइजेशन इसका पैसिव बनाए तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ नाइस हाउस, फिर आएगा इट इज द सिंगुलर। अ नाइस हाउस का सिंगुलर है तो इज आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? ठीक है, इट इज परफेक्ट टेंस है। अ नाइस हाउस इज और हैव का हो जाएगा हैड। अ नाइस हाउस इज हैड बाय आएगा, दे का देम हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से सेंटेंस बना भी दिया और ये आपको लगता है कि इट अ पैसिव सेंटेंस, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज नॉट करेक्ट, तो ये पैसिव सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? आप देख सकते हैं कि इज है और हैड भी है। ठीक है, इज और हैड एक साथ नहीं आ सकते, बिकॉज बोथ आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक इज है और एक हेड है। अब इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? नहीं है ना। आ नाइस हाउस इज हेड। अब देखिए, अब यहां कोई मेन वर्ब नहीं है जिसकी थर्ड फॉर्म जैसे रिटन है, स्पोकन है, ठीक है, वॉक्ड है, टॉक्ड है। तो थर्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है किसी वर्ब की, इसीलिए ये पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। पैसिव का मतलब क्या है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा प्लस जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म होगी, या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, जैसे टीच की टॉट है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं इज और हैड है, तो हैड कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। हैड इज एक्चुअली यूज इन अ सेंटेंस टू रेफर द स्टेट, स्टेटिव वर्ब है ये। इफ आई से आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो ये कार जो मेरे पास ही मेरे स्टेट को रेफर करता है, स्टेटस को रेफर करता है। लेकिन ये नहीं कह सकता अ कार इज हैड बाय मी, नहीं, क्योंकि इज और हैड आर हैड एक साथ यूज नहीं कर सकते इन अ सेंटेंस, दैट्स व्हाई ये पैसिव नहीं बन सकता। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, माई शूज डोंट फिट मी। अब देखो फिट जो है अगेन इट इज अ स्टेटिव वर्ब। अगर आपने ये एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी, जैसे माई शूज सब्जेक्ट है और मी के ऑब्जेक्ट है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पैसिवाइजेशन इसको पैसिव में चेंज किया, जैसे आई एम नॉट लिखा है, आई एम नॉट फिटेड बाय माई शूज, तो इसका सेंस ही अपोजिट है, इट इज नॉट कंप्लीट सेंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आपने लिखा आई एम नॉट फिटेड बाय माई शूज, तो इसका सेंस अपोजिट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आई एम नॉट, यू कैन से अनफिटेड, फिट का फिटेड नहीं है, yes that is not correct form used in the passivization, fit, fitted, so it means fit जो है again it is a kind of stative verb जिसका passive नहीं बन सकता। ये नेक्स्ट इज योर मदर लेक्स टेक्ट। अब देखिए लेक जो है अभी मैंने बताया कि लेक इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टेटिव वर्ब जो सिर्फ स्टेट को बताता है बट नॉट एक्शन। लेक में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट को रेफर कर रहा है। अब देखिए इसमें योर मदर पूरा सब्जेक्ट है, टेक्ट इज ऑब्जेक्ट, लेक्स क्या है? वर्ब है। अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिन्हें कहते हैं स्टेटिव वर्ब जिनका पैसिव नहीं बनता। इसीलिए अगर आपने कहा टेक्ट इज लेक्ट बाय योर मदर, टेक्ट इज लेक्ट, देखिए रूल को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसिव रूल को वायलेट कर रहा है, रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। इट मींस हम इट मींस टेक्ट इज लेक्ट, ठीक है, बाय योर मदर। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, टेक्ट इज लेक्ट बाय योर मदर, लेकिन इट मींस कि जो लेक्ट है LACKET लेक्ट, ठीक है, और लेक्ट के साथ हमारे पास क्या है? एक देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इट मींस कि हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टेटिव वर्ब जहां भी आ जाए इन अ सेंटेंस, जैसे यहां पे होता है इज और हैड एक साथ नहीं आ सकते, इसी तरीके से स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते हैं। वी कांट से इज हैव, इज हैड,
यू कांट से इज फिटेड, इज नॉट फिटेड, और यू कैन से इज लैक्ड, नहीं। स्टेटिव वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं, ये सिर्फ सिंगल वर्ब होता है, इनके साथ कोई और ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल वर्ब यूज होते हैं इन द स्टेटिव वर्ब। सो ये वर्ब्स हैं कुछ जो पैसिव में यूज नहीं होते हैं, एक है इंट्रांसिटिव वर्ब, एक सेकंड का है स्टेटिव वर्ब। तो टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास इंग्लिश में हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते, ये इनकी एक्टिव फॉर्म तो है लेकिन पैसिव फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अब ट्रांसिटिव वर्ब में और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिन्हें कहते हैं एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका तो पैसिव में चेंज करना बहुत आसान है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि ऐसे कौन से टेंसेस हैं जो सेम रहते हैं पैसिव इनटू एक्टिव, और ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, एक है इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव मींस वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव में उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, और पैसिव के लिए मैंडेटरी है कि उसका सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो नो इश्यू ऑफ इट, पैसिव सेंटेंस की बात हो रही है। इसी तरीके से स्टैटिक वर्ब्स जो ट्रांसिटिव वर्ब्स में आते हैं, इट मींस ट्रांसिटिव वर्ब्स मींस अ वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, की ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे वर्ब्स जिसे कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स जिनका भी पैसिव नहीं बनता है, जैसे मैंने एग्जांपल द फिट, have, lack, resemble and suit. So I hope you understood very well today in this video कि tenses और verb forms में क्या difference है, क्यों नहीं यूज करते पैसिव पैसिवाइजेशन में और पैसिव sentences में। So I hope you understood. If you have still any doubt, please ask me through the comment box, and like it, share it with your friends for the better understanding, and thank you so much.